meaning and components of aggregate demand. Meaning and components of aggregate demand. कह रहा है एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने के लिए मतलब क्या होता है, पहले ये तो समझे एग्रीगेट डिमांड का. मार्केट डिमांड क्या था? डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वो था मार्केट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एडी, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year. Total value of all goods and services, final goods and services, which all the sectors, household, firm, government, external, चार sectors होते हैं, four sectors of an economy. हाउसहोल्ड, प्राइवेट सेक्टर, फर्म जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, कह रहे सबका जो टोटल डिमांड है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. एडी इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. AD aggregate demand, aggregate expenditure, is it the actual or your willingness? When we studied microeconomics, demand, तो demand हम study कर रहे थे, the willingness of a consumer to buy units of a commodity at a particular price. Aggregate demand, total demand for final goods and services of all the sectors in an economy at a particular level of income. Willingness है ये भी. क्या है ये? Willingness. How much are the consumers willing to buy? What you are willing to buy is equal to what you are willing to spend. करो तो एक ही बात है. कितनी यूनिट्स आपको चाहिए? 10 यूनिट्स, तो इनटू प्राइस, this much you are willing to spend. So aggregate demand is equal to aggregate expenditure. कोई डाउट तो नहीं है? Is it the actual figure or your willingness? We are studying the willingness. तो willingness, how much? यहाँ पे लिखा ना, AD is the aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur during a given period of time. It is important to note that aggregate expenditure refers to the planned expenditure and not the actual expenditure. जो भी हमने discuss करा, it is the willingness, how much you plan to spend. Actual आपने क्या करा वो अलग होगा figure. उसको बोलेंगे आगे जाके सीखेंगे हम ex post, realized. No. So हम अभी क्या study कर रहे हैं? AD is the willingness, how much you are willing to spend, how much you are planning to spend. It is not the actual expenditure. So AD is the total expenditure that all the sectors, char sector, household, firms, government, and the rest of the world are planning to incur during a given period of time. AD is a flow concept. Aggregate expenditure, income is a flow concept. Expenditure for the year. So expenditure is aggregate expenditure, aggregate demand is for a period of time. इस साल हमारी aggregate demand क्या थी? It is generally measured for the period of an accounting year. Do not confuse. तो हम already कर चुके हैं clear. Do not confuse aggregate demand with market demand. Market demand एक micro concept था. Market demand is the demand of all the consumers, but for a particular commodity. एक मार्केट डिमांड फॉर OnePlus मोबाइल फोन, मार्केट डिमांड फॉर मैकबुक एयर, मार्केट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर शू और शूज, बट वी आर स्टडीइंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी. But when we say aggregate demand, it is for all the goods and services in the economy. Aggregate demand is the total demand for all the goods and services in the entire economy, whereas market demand is the total demand for one commodity in the market. Market demand
is a micro concept and aggregate demand is a macro concept. एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है, एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है. विदाउट मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अब आते हैं हम कंपोनेंट्स पे. क्या बताया, 4 सेक्टर्स कौन से हैं? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हाउस होल्ड क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फर्म्स, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेटिंग अप द बिजनेस एंटिटीज. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एक्सटर्नल सेक्टर क्या करता है? नेट एक्सपोर्ट्स. नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स. तो वही है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मेथड से ही डिराइव हुआ, वो भी तो एक्सपेंडिचर ही तो था. तो 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, ऑल्सो नोन एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सुनने पे ध्यान देंगे. मीनिंग क्लियर है एग्रीगेट डिमांड का? 4 सेक्टर्स क्लियर है. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. तो पहला कंपोनेंट हाउस होल्ड consumption expenditure, तो private final consumption expenditure. It refers to the total expenditure incurred by the households on purchase of goods and services during an accounting year. Generally consumption expenditure is incurred or is directly influenced by the level of disposable income. कह रहे generally आप कितना खर्चा करेंगे? कह रहे depends on the level of income. Higher the level of income, higher would be the consumption expenditure. Yes or no? Higher the income, disposable income. Disposable income मतलब income at your disposal after deduction of taxes. जो आपकी इनकम होती है उसको बोलते हैं disposable income. तो और कुछ नहीं, यहाँ पे आपके लिए national income और disposable income एक ही बात होगी. बट disposable income का मतलब होता है income at your disposal, जितने आपने कमाए, जो आप actually खर्च कर पाएंगे. डिस्पोजेबल इनकम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक आपका सेविंग्स. हाथ बाहर नहीं आ जाएगा, पकड़ के मत बैठ, ठीक है ना, कंट्रोल. तो डिस्पोजेबल इनकम 2 कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग्स. डिस्पोजेबल इनकम और कुछ नहीं, नेशन की इनकम ही है. हायर द डिस्पोजेबल इनकम, मोर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा. Disposable income refers to the income from all the sources which is available to the households for spending on consumption. Income at your disposal, जितने आपने कमाए. अब आपकी मर्जी है, आपने कंजम्पशन करनी है या सेविंग्स करनी है. तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब हम यहाँ नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं क्या? नो, बट ये डिराइव वहीं से हुआ है. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और कुछ नहीं, आपके एग्रीगेट डिमांड आपके एक्सपेंडिचर के ही कंपोनेंट्स है, जीडीपी एमपी वाले. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और कुछ नहीं, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है, इन्वेस्टमेंट ही तो थी वो भी. इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स. बट सर वहां पे तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती थी, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती थी और इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी होती थी. तो तभी उन्होंने क्या वर्ड यूज करा? जनरली. तो यहाँ पे बोला जनरली इन्वेस्टमेंट ये करते हैं. तो बट ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, तो वो भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा पर्पस नेशनल इनकम निकालना नहीं है, तो बस आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि एक हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरली डन बाय द प्राइवेट फर्म्स. इट इंक्लूड्स एडिशन टू स्टॉक, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आ गया. ठीक है जी. फॉर सिंप्लिसिटी इट इज अज्यूम्ड इन आवर स्टडी दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज autonomous, that is investments are not influenced by the level of income. मतलब ध्यान से देखना, आगे जाके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है, इसलिए अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा मैं.
ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, DENT इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस का मतलब इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब not influenced by anyone, not influenced by anyone. Self reliant word would not fit here, ठीक है ना? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, तो यहां पे क्या है? ऑटोनॉमस का जनरल मीनिंग इंडिपेंडेंट बॉडी, कोई और इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यहां पे हम क्या अभी क्या स्टडी कर रहे हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। independent of the level of income, independent of the level of income, that is not affected by income, not affected by income, income से affect नहीं होती। मतलब इनकम 100 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। assumption है। तो इन्होंने बोला ना, फॉर सिंप्लिसिटी इट इज अज्यूम। उन्होंने बोला कंजम्पशन इट विल वेरी विद द लेवल ऑफ इनकम। इनकम जितनी ज्यादा होगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा होगा, इनकम जितनी कम होगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना कम होगा। कह रहे बिल्कुल लॉजिकल है। कह रहे इन्वेस्टमेंट भी तो ऐसा ही होगा, जितनी आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे। कह रहे अजम्पशन है, फॉर सिंप्लिसिटी हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है। तो ऑटोनॉमस है, अजम्पशन है कि देयर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज विद द चेंज इन इनकम, इट विल रिमेन फिक्स्ड। अजम्पशन है, कोई डाउट? नेक्स्ट कंपोनेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने तो पूरा गवर्नमेंट बजट ही पढ़ लिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो तो हमें नींद में भी पूछ लेना तो भी हम बता देंगे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक कंपोनेंट है। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स टू सैटिस्फाई कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ हम नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने बोला गवर्नमेंट का जो खर्चा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर आ गया। हाउस होल्ड का भी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का भी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो सब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में आ गया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो अलग से दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ फर्म्स का खर्चा दिखाया। इट मींस गवर्नमेंट इनकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस का खर्चा, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा। level of the government is level of government expenditure is determined by the policy of the government which is generally guided by social welfare policy। मतलब क्या है, उस टाइम पे डेफिसिट बजट फॉलो कर रहे हो या सरप्लस बजट फॉलो कर रहे हो? डेफिसिट बजट है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, रिसीट्स कम होंगी। सरप्लस बजट है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, रिसीट्स ज्यादा होंगे। कह रहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा, मतलब वो तो उनकी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, वो तो हर साल बजट डिसाइड करता है कि इस साल हम कितना खर्चा करने वाले हैं। कोई डाउट? Last component of aggregate demand, net exports. Net exports, exports minus imports. Exports indicate demand for goods produced within the domestic territory of a country. Exports, जो सामान इंडिया में बना लेकिन बाहर कंज्यूम होगा, तो डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स बाय द फॉरेन कंट्रीज, तो वो होते हैं आपके एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स रेफर टू demand of the residents of a country for goods that have been produced abroad। तो मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स तो आपको क्लियर है। नेट एक्सपोर्ट्स लास्ट कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स जनरली डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ एक्सचेंज। तो अगर डॉलर सस्ता होगा तो डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स ज्यादा होगी, डॉलर महंगा होगा तो मतलब लॉ ऑफ डिमांड है, कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। तो लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। हायर द इनकम, हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज अज्यूम्ड दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट, सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है. लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग मेड बाय द गवर्नमेंट बजट पे डिपेंड करता है. Level of net exports, it depends on the foreign exchange rate, relative prices of goods, exchange duties, trade policy, etc. Clear है components? 4 components: private consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure, net exports. AD, private consumption expenditure, investment expenditure, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स. बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है नेशनल इनकम में और इसमें. इन टोटल तो सेम है, इन टोटल तो सेम है. इन्होंने क्या करा कि हाउस होल्ड का सब एक साथ दिखा दिया, हाउस होल्ड का सब एक साथ दिखा दिया, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी. इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो होती है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ किसका है? फर्म्स का. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ गवर्नमेंट का. क्या ये सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी. नेट एक्सपोर्ट्स किसका है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का. फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर और फोर्थ सेक्टर. 4 सेक्टर इकोनॉमी में तो चारों ही होंगे. 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन 3 होते हैं? तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट. 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन होते हैं? हाउस होल्ड और फर्म. तो हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी. हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी. कोई डाउट? 3 सेक्टर इकोनॉमी हमारे कोर्स में नहीं है. while studying equilibrium, while studying equilibrium, तो it is assumed प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? I. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G. नेट एक्सपोर्ट्स X माइनस M. तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे कोर्स में इक्विलिब्रियम में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है, तो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, AD इज इक्वल टू C प्लस I. तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती. नेट एक्सपोर्ट्स नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपको कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स विद प्रॉपर लॉजिक. प्लीज